ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਉਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ 15 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਾਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਗਹਿਰੇ ਭਾਵ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਗਦ-ਗਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ 10-15 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ 10ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵੇ ਕਾਰਿਆ ਕਾਰੇ ਉਭੇ ਜੰਤ ਲੈ ਫਾਹੇ ਉਠ ਧਾਵਤੇ ਸੇ ਜਾਨ ਮਾਰੇ ਭਗਵੰਤ। ਇਹਦੀ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਰੇ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਕਬੀਰਾ ਰਾਤੀ ਹੋਵੇ ਕਾਰੀਆਂ ਕਾਲੀ ਰਾਤ। ਕਾਲਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਨਣ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਧਿਆਤਮਕਵਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੀਵਨ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾਏ, ਕਬੀਰ ਰਾਤੀ ਹੋਵਣ ਕਾਰੀਆਂ ਕਾਰੇ ਉਭੇ ਜੰਤ। ਉਭੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈ ਫਾਹੇ ਉਠ ਧਾਵਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਫਾਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰੱਸਾ ਟਾਈਟ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਫਾਹਾ ਲੈਣਾ। तो कबीर जी कह रहे हैं लै फाहे उठ धावत। अज्ञानता दे विच जीवन गुजारिया होया इस तरह दा है जिवें कि इंसान ने अपने गले विच अपने हत्थां नाल ही फाहा पा लिया। तो जे अपने ही हत्थां नाल फाहा पा लिया है तो फिर उहदा रिजल्ट की हुंदा? फाहे दा रिजल्ट की होना? मौत ही होनी है। से जान मारे भगवंत, ये तो कुदरत का कानून है। जे फाह गल च पा के रस्सी टाइट करते जाओगे तो मौत आएगी आएगी। पर ये केड़ी मौत है ते फाहा केड़ा है? फाहा माया दा ते मौत केड़ी है? अध्यात्मक दी तौर ते। आत्मक तौर ते मौत होनी जरूरी है, क्योंकि माया दा फाहा गल विच पा के सारा ही जीवन गुजारी जाता है। ज्ञान पासे तुरन दी हिम्मत ही नहीं करता, विचार ही नहीं करता। सो हुण तुसीं देखो हर एक अखर सिंबॉलिक सी। मौत सिंबॉलिक सी, फाहा सिंबॉलिक सी, रात सिंबॉलिक सी, काला रंग संबालिक सी, ते असीं उहदा सिंबल वेखिया कोई नहीं, फटाफट ट्रांसलेशन कर दी। ये है साडियां जिस तरह कहते ना अपने पैरों ते आप कुल्हाड़ी मारन दा ऐ गल बनी है। पर असीं जिवें जिवें वेंदे आ रहे हैं क्योंकि जे इस तो पहले वाला श्लोक पढ़िया जाए जिहड़ा श्लोक 9वां सी ते उस दे विच कबीर जी ने हंकार की गल कीती सी कि इंसान हिंकार दे वल विचार नहीं करता। ते हंकार वधदा किस तरह? कहंदे अज्ञानता करके। अज्ञानता वधदी जाती है, हंकार वधदा जाता है। सो हुण इस सबजैक्ट नूं अपने ध्यान च रखना है। ये सी 10वां श्लोक ते 11वें श्लोक विच कबीर जी इशारा कर रहे ने। कबीर चंदन का बिरवा भला बेड़े ढाक पलास। बिरवा टुकड़ा, बेड़ियो ढाक पलास। ढाक दा भी एक दरख्त हुंदा है, पलास का मतलब उसके ऊपर। कबीर जी सिमली दे रहे हैं कि चंदन का एक टुकड़ा ढाक दे दरख्त दे नाल लगा दिओ ते तुहानू एक अनोखा चमत्कार नजर आएगा। वो
केड़ा अनोखा है? ओए भी चंदन होए रहे। उस चंदन के टुकड़े की खुशबू ढाक के दरख्त में चली जाती है। पर इसका हुण मतलब की होया? जिहड़ा 10वां श्लोक है उहदे नाल इस श्लोक का की संबंध है? उपर गल की जा रही सी अज्ञानता की। कबीरा राती होवन कारियां, अज्ञानता की काली रात की गल हो रही सी। ते ये ते अध्यात्मक मौत हो जाएगी, पर इसका कोई इलाज भी है? इस तो बचिया भी जा सकता है। मैं तो अज्ञानी हाँ, मान लिया। कि मैं हुण सारे जीवन में कंडेम्ड हाँ कि मैं इस तरह ही मरांगा? कबीर जी कहते गल नहीं है। इंसान नूं गुरबाणी निराशा दे हथ कदी नहीं रहन दिंदी, ते निराशा चों कढण दे लई इशारा करते हैं कि कुदरत कोलों कुछ सिख। ओए भे चंदन होए रहे, रहे जो चंदन पास। जिस तरह चंदन की खुशबू दूजियां दरख्तां 'च चली जाती है, जे तू भी ऐसियां बख्शियां होइयां आत्मा का संग कर लवें, उन्हां दे नेड़े हो जावें, इसे करके सत संगत का जिहड़ा इतना जोर है गुरसिक्खी दे विच, उहदा कारण यह है क्योंकि सत संगत की गल है, कली संगत की गल नहीं। कली संगत क्लब भी हो सकती है, पर सत संगत की डेफिनेशन दे दी गुरबाणी ने। सत संगत ऐसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है, जिथे एक दी गल हो रही है। जे उथे तू चले जाए ते तेरे ते भी असर होने दे चांस है ने, गारंटी नहीं है। ये गारंटी नहीं है, चांस है ने, पॉसिबिलिटी है। उत्थे जाके तो मोटिवेट हो सकता है, पर वो शर्त एक है। तो केड़े मोटिवेट नहीं होंगे संगत च आके जी? अगले श्लोक में जो कंडीशन दसते हैं, कहते देख गल सुन, जे संगत में जाके बैठे हो, उसी मिसाल नूं जिहड़ी दिती है कि चंदन जिहड़ा है उहदा ते टुकड़ा भी चंगा है, वो ते ढाक दे दरख्त नूं भी सुगंधी दे दिंदा है। ते कबीर जी कहते ने, कबीर बांस बड़ाई बूढ़िया। बांस का दरख्त बड़ा लंबा होंदा है और सीधा होंदा, उहदी जड़ा बहुत नीवियां धरती च होंदियां ने। कहते देख बाहरों वेखण नूं एक किड्डा वड्डा पौधा है, किड्डा वड्डा प्लांट है, पर किते इहदे वर्गा ना वड्डा होई तू भी। क्यों? कबीर बांस बड़ाई बूढ़िया, एवं मत डूबो कोए। किस करके अलर्ट क्यों कर रहे हैं? कहते चंदन के निकटे बसे बांस सुगंध ना होए। सारी धरती दे उत्ते एक ऐसा पौधा है जिहड़ा चंदन कोल रह के भी खाली रह जाता है।
क्यों खाली रह जाता है? इस करके कि ਉਹਦੇ थोड़े थोड़े लंबाई तो बाद गंढा ने ते विच ਉਹਦੇ गुद्दा भरिया होया। ਜਦੋਂ बांसरी बनानी हुंदी है बांस दी ते ਉਹਨੂੰ जिथे दो गंढा ने ना ਉੱਥੋਂ कटिया जाता है। जिन्नी उन्होंने गंढां की लंबाई है ओडी वड्डी बांसरी बनती है। तो फिर उन्होंने अंदरों गुद्दा ਉਹਦਾ साफ करके फिर ਉਹਦੇ ਮੋਰੀਆਂ करके तो ਉਹਦੀ बांसरी बनाते हैं। जेकर तेरे विच भी सिर्फ बाहर की लंबाई है पर हाथां ते हंकार दियां गंढां वजियां होईयां ने तो फिर तू संगत में जाके भी खाली रह जाएगा, तेरे च खुशबू नहीं आनी। देखिए क्या संबंध है, अगर पिछड़ रखने का कारण की है। जिथे चंदन की मिसाल दी है उत्थे बांस नाल रख दिता है। पर सानू पौधों नाल कोई संबंध नहीं है, ना सानू चंदन नाल संबंध है, ना सानू बांस नाल संबंध है। असा तो देखना है कि कबीर जी इन्हां दे विच इशारा की करते हैं। ये एक सिमली है, एक सिंबल है। इस सिंबल के पीछे छुपया की है? जिहड़ी आम ट्रांसलेशन ने वो सिर्फ पौधों पर ध्यान दे रही हैं। चंदन खुशबूदार है, वो नैचुरल खुशबू है। इस तरह ही गुरसिख जेड़ा परमात्मा नाल जुड़िया होया है, वो च परमात्मा की खुशबू है। एक बड़ी प्यारी मिसाल दी जाती है कि पंछियां विचों सारियां तो कीमती पंछी है हंस। पर जे हंस कां दे लागे बैठा होवे ते कां दा कुछ नहीं सवार सकता। ते गुरु दे प्यारियां दे विच सारियां तो उत्तम है जिहड़ा गुरसिख बन गया, गुरमुख बन गया। पर गुरमुख उस हंस नालों चंगा है, क्योंकि जेकर वो दूसरे अज्ञानी कोल बैठा होएगा तो ओदा कोई सवार सकता है, उन्होंने अपनी खुशबू का हिस्सा दे सकता है, बशर्ते जिन्हों दिता जा रहा वो किते बांस वर्गा ना होए। जे वो बांस वर्गा नहीं है तो खुशबू ले लेगा। पंछी पंछियों का कुछ नहीं सवार सकते, इंसान इंसाना का कुछ सवार सकता है। इस करके गुरसिख नूं यह हुक्म है कि जे तैनू गुरु ने प्रसाद दिता तो तू इनू गंढ मार के बह नहीं जाना। इस करके कबीर जी ने दी बाणी दे बारे साफ कह दिता, गुरे दी कबीर को, कबीरे दी संसार को, लीनी जिन मस्तक पाक। कबीर जी नूं परमात्मा को प्रसाद मिलिया, कबीर जी ने खुले दिल नाल वंडना शुरू कर दिता। पर की सारे ने लै लिया? कहते नहीं, क्योंकि दुनिया विच बांस बहुते ने, ढाक दे दरख्त थोड़े ने, इस करके वो खुशबू फैलती ही नहीं, छोटी होकर रह जाती है, लिमिटेड हो जाती है।
सुन लई बर्दाश्त करने लई खुशबू वाली गल सानू चंगी लगदी नहीं। तो कबीर जी सानू इन्हां सिर्फ 2 लाइनां दे अंदर अंदर गल समझा गए, भेद दस गए। पर इस भेद नूं कहते दुनिया फड़दी नहीं। भावें ब्रह्म ज्ञानी कितनियां भी चांगरा मार मार के रौला क्यों ना पावे, बांस इस गल नूं फड़दा नहीं। ते की हुंदा? अगला श्लोक आ गया। अगले श्लोक जी फरमांदे ने, कबीर दीन गवाया दुनी स्यो। दुनिया करके धर्म का रस्ता छड़ दिता। की करिए जी, दुनिया च सच बोलिए गुजारा ही नहीं होंदा, तो सच बोलना छड़ दिता। हर रिश्ते दे विच झूठ है, हर ट्रांजैक्शन दे विच झूठ है। की करिए जी, सच दस गल ही नहीं बनती। सिखरे महाराज कहते सच काल कूड़ वरत्या, कल काल है बेताल। कलयुग में तो सारे बेताले हुए पे ने, क्योंकि इत्थे ते कूड़ राजा है। तो जे राजा कूड़ हो गए तो फिर प्रजा वो भी कूड़ हो गई। सच नाल गुजारा हुंदा ही नहीं, ते दुनिया के पिछे लग गया, झूठ बोलने लग पिया। बाणी ने फैसला दिता सी, कलयुग रथ अगन का कूड़ अगे रथ वाओ। कलयुग दे विच दुनिया चलदी ही झूठ दे रथ दे उत्ते है। तो उहदे नाल बनिया की दीन गवाया, धर्म गवाच गया। दुनिया रख ली, बचा ली, समाज बचा लिया, परिवार बचा लिया, करतार नूं अपनी जिंदगी चों कढ दिता। जिसले करतार नूं कढ दिता, दुनिया रख लई ते समा आ गया। ते हुण की होया? दुनिया ने 40 साथ, हुण दुनिया विचों कोई साथ देण वाला नाल नहीं। होर ते होर जिन्ना कर्म इंद्रियां ने दुनिया दे नाल जोड़िया सी, वो कर्म इंद्रियां भी इत्थे रह गईयां, वो भी नाल नहीं चलियां। और सारे जानने हुण इहदे विच किहड़ी नवीं गल है? ये किहनूं नहीं पता कि जिहड़ा शरीर स्वादां दे करके साडे कोलों माड़े काम कराउंदा है, वो शरीर नाल नहीं तुरदा, आउंदा नाल है, जान लगे साथ नहीं दिंदा। ते कबीर जी कह रहे ने, जे तैनूं इन्ना होश होवे ते आद ना करे कि पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ पैर ते आपे कुल्हाड़ी मारन वाली गल नहीं। जे तो तेनू ना पता होवे, ना तू सुनिया होवे, ना किसी ने तेनू समझाया होवे, जितने ब्रह्म ज्ञान के ग्रंथ ने यही तो सारे कह रहे हैं कि तू माया दे नाल ना जुड़, तू करतार ना जुड़। पर कीता ना, क्योंकि करतार ना जुड़न दे लई दुनिया नूं छड्डना पैंदा है, दुनिया तो दूर हटना पैंदा है। भगत नामदेव जी ने साफ नहीं सी किया, री भाई बेड़ी दे ना जाए, देख बेड़ी रे समाज क्या दसी, बेड़ी प्रीत मजूरी मांगे, जे को छान छवावे हो,
लोग कुटुंब सबहू ते तोरै, संसार ते परिवार सारिਆਂ ਤੋਂ पिछां हटा लैंदा, ताओ आपन बेटी आवे हो। ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, नहीं तो नहीं होंगी। कबीर जी ने अज इस ढंग न कहता, कबीर दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी न चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। पर जे हुण पैर ते कुहाड़ा मार लिया तो उहदा एंड रिजल्ट की होना है? अगले श्लोक उहदा रिजल्ट दसदे पे ने, कबीर जय जय हाँ फिरियो कौतक ठाए ठाओ ठाए, एक राम स्नेही बाहरा उज्जर मेरे भाई। कहते मैं तो दुनिया वेख ली, और एक दो दी गल नहीं, जय जय हाँ फिरियो। जिथे जिथे भी ये हंकार फिरिया है, ध्यान दियो, हाँ फिर तो मतलब ये नहीं कि मैं कबीर कह रहा मैं फिरिया, कहना मैं देखता पाया सारे पास, जिथे जिथे भी हंकार दा डेरा गया है उथे यही गल हुई है, कौतक ठाओ ठाए, उथे यही गल हुई है। केड़ी? एक राम स्नेही बारा उज्जर मेरे भाई, ओदे तो टुटिया होया, अपने आप समझदा मैं रौनक लगा के बैठा होया, पर ऐ जिस तरह के सारा संसार शमशान बनया पिया, उजाड़ बनया पिया, उज्जर उजाड़। क्योंकि अपने पैर ते खुलाड़ा मारिया होया, तो जिसनों रौनक समझ लिया वो उजाड़ है। उजाड़ की उन्होंने समझ नहीं आती कि मैं की कर रहा, पर वो क्यों करी जा रहा है? क्योंकि ऐ साथ नहीं है, ऐ संगत नहीं है। केड़ी संगत? अगले श्लोक जो वो जवाब देंगे ने, कबीर संतन की चुंगिया भली भट्ठ कुसत्ती गाओ। एक टुटी हुई झोंपड़ी दे विच अगर एक भगत बैठा होया तां ओदी संगत चंगी है, बजाए बाकी सारे पिंड दे नाल, सारे गाँव दे नाल, सारे शहर दे नाल सुलह सफाई हुई होवे। पर वो एक को जाके बहिंदा नहीं, चंदन को जाके बहिंदा नहीं, बांस को जाके बहिंदा, क्योंकि बांस बहुते ने। ओदी सारी खेड़ गिनती दी बन गई है। ते ओदा लॉजिक ये है, देखो जी इन्ने सारे गलत थोड़ी हो सकते हैं, सारे कर रहे हैं, असीं भी कर रहे हैं। मगर उन्होंने ये गल नहीं समझ आउंदी, जिहड़ा भगत है उहदे लई आग लगो ते धावल हर। वो वड्डे वड्डे महलों नूं, माड़ियां नूं अग लगा दिंदा, कहंदा मैनूं ऐस झोंपड़ी च बह के जिथे मैं उसका नाम जप सकना ना, मैनूं वो मंजूर है, मैनूं आ महलों का सुख मंजूर नहीं है। हुण साडे लिए कॉन्सैप्ट इतना औखा है समझना जी, ये तो सानू तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ वैरागी बना के ते घरां घाटां तो बाहर कड्डोगे, बिल्कुल नहीं। राजे जनक ने अपना राजपाट छड्डिया ही नहीं सी सारी उम्र, सानू उहदे कोलों सबक लैण दी लोड़ है। महलों में रह के भी उदास किस तरह रहा जा सकता है,
मन ही माहे उदासा किस तरह रहा जा रहा। जिथे आग लगो ते धावल हर जे नाही हर को नाव। जे भगती नहीं हो सकती ते ओ महल माड़ी किसे कम दी नहीं। जिन्हां को महल माड़ियां वड्डियां ने उन्हां नूं सगों होर खुला कर लैण, दीवारां ढा देण ते की करना उत्थे? उत्थे संगत इकट्ठी करो। मैनूं अजे तक याद है, मैं जो 78 च 79 च इत्थे आया है कैलीफोर्निया च, ऑरेंज काउंटी के जिन्ने डॉक्टर सी इन्हां दा वरमांट दूर पैंदा सी ऑरेंज काउंटी तो। इन्हां कहा जी असीं अपना शुरू करना है। मैनूं बड़ा पूरी तरह याद है। इन्हां दे करता धरता दास को आए, असीं शुरू करना चाहते हैं और जगह जुगह लैनी चाहते हैं। मैं कहा तुहाडी मत मारी गई। तुहाडे हर डॉक्टर का घर गुरुद्वारे जिड्डा है, तुसीं गुरुद्वारे लैके की करने हैं? ओए अपने घरां च संगत करया करो। तुहाडे हर दा लिविंग रूम जिहड़ा है पूरे हाल जिन्ना है। थोड़ी देर लिए इन्हां दे गल बैठ गई, इन्हां ने मंथली अपने घरां च शुरू कर दिता। पर जिहड़ा मन दा हंकार है वह की करिए? हौली हौली वो बंद हो गया। संस्था बन गई, जगह लाई गई। मैं फिर उन्होंने जाके कहा, मैं कहा तुसीं ये ना अपने बच्चों का इंतजाम कर रहे हो, ना तुहानूं संगत नाल कोई संबंध है, तुसीं एक दूजे की पगड़ी लाउण का इंतजाम कर लिया। तो जवाब मिलिया, नहीं जी असीं इहनूं गुरुद्वारा बनन ही नहीं देना, असीं इहनूं एज ए बिजनेस चलावांगे, कारपोरेशन चलावांगे और पूरा अपना कंट्रोल रखांगे। इत्थे कोई राजनीति नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। ये अज तो 30 साल पुरानी गल है। हुण जिन्ना जूत पतान ते जिन्ना रौला गौला उस संस्था ते पैंदा है, उन्ना ही बाकियां च पैंदा है। नहीं बचा सके, बच सकता नहीं। संस्था धर्म के नाम के उत्ते संस्था रह नहीं सकती। धर्म जां संस्था रहेगी या धर्म रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। कुदरत का कानून नहीं। जिथे पैसा आ गया उत्थे ताकत आ गई, जिथे ताकत आ गई उत्थे धर्म उड़ गया। हुण पैसा ते ताकत दोने कट्ठियां कट्ठियां चलणगियां, धर्म नहीं रहेगा। ये तुसीं 5 तख्तां दे पंजाब दियां तो लैके नॉर्थ अमेरिका तो लैके यूरोप दे लैके जिथे मर्जी घूम के वेख लो तुसीं, सारे नॉर्थ अमेरिका। दास कैनेडा च गया, उसे पता लगा कि एक खास गुरुद्वारा सिर्फ 9 महलों तक मनता है, 10वें की गल नहीं करता। क्यों जी? कहते जी असीं जिथे भी जाते सां साड़ियां पगड़ियां दे उत्ते रौला पाउंदे सी। असां क्या तुसीं ऐसे करो, असीं पगड़ियां दे उत्ते सानूं कोई गल ही ना कहे, असीं 9 महले नूं मनने, 10वें नूं मनदे नहीं, असीं गुरुद्वारा अपना खोल लिया। इत्थे 9 महलों तक गल होंदी, 10वें की गल ही नहीं होंदी। लो जी आ जे धर्म साडा। जिथे परमात्मा की गल नहीं हो सकती उन्हां संस्थावां नूं जला दिओ। मैं नहीं कह रहा, गुरबाणी कह रही है, आग लगो ते धावल हर जे नाही हर को नाओ। जिथे वो कमाई नहीं हो रही, वो बिल्डिंगां उजाड़ हैं, उन्हां दा कोई फायदा नहीं, क्योंकि उत्थे हुंदा की है? कहते दुनिया का रौला गौला है, रोना धोना ही है। समाज का रौला गौला, समाज का रोना धोना है। पर असीं रोंदे धोंदे क्यों हाँ? कहते ऐस करके
अगले श्लोक च फरमाते ने, कबीर संत मुए क्या रोई है। जेड़ा भगत है अगर वो दुनिया छड़ के चला गया तो वो रोन की लोड़ की है भाई, कौन रोएगा वो, किस करके रोना, क्यों? जो अपने ग्रह जाए वो तो जिथों आया सी वापस चला गया। ऐस पिंजरे में ओदी जिहड़ी आत्मा बधी हुई सी मुड़ के परमात्मा जा मिली है। रोना धोना इत्थे दुनिया दा है, किस करके? रोवो साकत बापरे जो हाटे हाट बिकाए। परमात्मा नालों टुटी हुई आत्मा हाटे हाट थां थां भटकती है। इथों भी 10 पैसे मिल जान, इथों भी 10 पैसे मिल जान, इथों भी 10 पैसे मिल जान। वो वाकई रोन धोन वाली गल है कि वो जीवन बर्बाद करके गया। ओदे जान दा ते रोना होना चाहिए है, क्यों? जिस तरह का खाली आया सी उस तरह का खाली चला गया। जो जीवन का मौका मिलया सी उसका कोई फायदा ही नहीं उठाया। संस्थावां दे विच ऐसे जीवां दा रोना धोना होंदा है। मैं बड़ा हैरान होया। दास नूं साडे एक न्यूयॉर्क तो जाने वाले पुराने मित्र सन, उन्हां दे गुजर जान दे उत्ते सुनेहा भेजा गया जी अज दीवान है उन्हां दा अंतम, तुसीं आयो। दास पहुंचा संगत विच ते अपने मित्र नूं याद करके श्रद्धांजलि दे रहे ने। उन्हां दे मित्र दरबार लगे होए विच साडा मित्र जूआ बड़ा अच्छा खेडदा सी ते सानू तो ऐ लगता है वो जाके हुण परमात्मा नाल भी जुआ खेडन दिया। दास दा सिर शर्म नाल चुक गया। किसी दे चले जान तो बाद उसकी आ याद रह गई पिछे कि ताश बड़ी अच्छी खेडदे, 3 पत्ती का उन्होंने बड़ा शौक सी और बड़ी चंगी खेडदा सी। ये मौतां राउण वालियां मौतां ने। रोवो साकत बापरे, परमात्मा नालों टुटी हुई मौत जीवन बर्बाद होने वाली मौत है। संत दी मौत बर्बाद होने वाली नहीं हुंदी। ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करना चाहिए, तेरे को वापस आ गया, इन्हों दोबारा वापस ना आना पवे। पर ये जिहड़े परमात्मा नालों टुटे हुंदे ने इन्हों पछाणीए किस तरह? जे संत दी संगत करनी है ते परमात्मा नालों टुटे दी संगत नहीं करनी, ये पहचानिया किस तरह जाएगा? अगले श्लोक च कबीर जी का जवाब देंगे ने। मैं इस करके तुहानूं हर श्लोक का नाल लिंक दसी जा रहा, वेखते जाओ कि इस तो बाद ये श्लोक आया क्यों। उपरों वेखण नाल नहीं पता लगना। उपर साकत की गल की सी ना। कबीर जी कहते ने, कबीर साकत ऐसा है जैसे लसन की खान, गार्लिक। जिन्हों ने कभी लॉस एंजलिस तो सैन होजे नूं ड्राइव किया है ते 152 रूट लैके अगर तुसी सैन होजे वाले पासे जाओ, 5 ते ना सीधे तुरे जाओ तो उथे एक पूरा पिंड ही ये है जिहदा काश्ती ही सारी जिहड़ी है लसन दी है, गार्लिक दी है ना। हाँ गिलरॉय गिलरॉय दे तुसी लागे पहुंचण लगो तो कार च बैठे दूरों पता लगता भी सही रस्ते जा रहे हैं। हालां लसन छिले नहीं हुंदे, पुट्टे नहीं हुंदे, दबाए ही हुंदे ने। कबीर जी मिसाल दे रहे हैं, कहते जिहड़ा परमात्मा नालों टुटा होवे ना, दूर दूर तो वह पता लगता क्योंकि वो गलबात विच,
ਉਹਦੇ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਾਇਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਖੁੱਭਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਸਣ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਾ ਦਈਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਣੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਏ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨਿਦਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲਸਣ ਦੀ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸੁਣਿਆ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ। ਡੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੋਲਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚਾਟੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਮਟਕਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਏ ਇਹ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਮਟਕੇ ਵਰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਰੜਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਝਕੋਲਣਹਾਰ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਧਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਰੜਕ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਧਾਣੀ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰ ਮਟਕੀ ਤਦੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਕਾ ਬਲੋਵਣਾ ਬਿਲੋਵੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਸਹਿਜੇ ਬਿਲੋਵੋ ਜੈਸੇ ਤਤ ਨਾ ਜਾਈ। ਤਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਟਕੀ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਮਟਕੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਰਿੜਕ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤੋ ਮਾਖਣ ਖਾਇਆ ਛਾਛ ਪੀਏ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਪ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਡੋਲਣੀ ਪਵਨ ਵਹੈ ਹੇਵਧਾਰ, ਜਿਨੇ ਬਿਲੋਇਆ ਤਿਨੇ ਖਾਇਆ ਅਵਰ ਬਿਲੋਵਣਹਾਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਵਨ ਵਹੇ ਹੇਵਧਾਰ। हेव का मतलब है ठंडा, बर्फ वर्गा। हवा दे विच शीतलता है, ठंड है, ये अंदर शांत कर सकती है। ये बेसिक एनर्जी है उसकी दिती हुई। पर इस एनर्जी नूं वरते ते सही ढंग नाल। वो ढंग की है? कहते जिन्हें बिलोया तिन्ने खाया। जिन्हें इस नूं रिड़क लिया
उसनूं प्रसाद मिल गया। ते जिन्हें इन्हें ढंग नाल नहीं रिड़किया, अवर बिलोवन हार, वो कहते पानी रिड़की जाते हैं, लभदा कुछ नहीं। क्यों नहीं लगता? परमात्मा नाल जुड़े हुए नहीं, जुड़े माया नाल ने, जुड़े संसार नाल ने, जुड़े परिवार नाल ने। इस करके कोई भी धर्म का काम उन्हां दे काम नहीं आउंदा। होर ढंग नाल समझाते हैं, उसे माया की डेफिनेशन दे रहे हैं। कबीर माया चोरटी, चोरटी का मतलब चोरां वर्गी, चंदरी जई। ते की करती है? मुस लावे हाट। मुस का मतलब होता है ठगना। कहते दुकानदारी चलाई आपां ठग के चलाई है, हट्टी बनाई है, वो चल भी ठगी करके रही है, बनाई भी ठग नाल। क्योंकि माया की हट्टी मेहनत नाल ही बन सकती। महाराज ने इथों कह दिता, पापा बाजों होवे नाही, मोया साथ ना जाई। माया की डेफिनेशन दे दी। जे माया कट्ठी करनी है, जिथे माया कट्ठी हुई है उत्थे पाप होया वै, क्योंकि जिथे पाप नहीं होते उत्थे गुजारे जगी माया रहेगी, दौलत रहेगी। जे जमा हो गई है तो उत्थे कोई ना कोई गड़बड़ी है। कबीर माया चोरटी मुस लावे हाट, एक कबीरा ना मुसे जिने कीनी बाहरे बाट। एक ओ नहीं ठगिया जा सकता। क्यों नहीं ठगिया जा सकता? कहते ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने वो भी नहीं ठगे जाते, वो माया दे टुकड़े टुकड़े करके सुट दिंदे ने। जिन्हें कीनी बारे बाट, 12 कई टुकड़े करके सुट देते, उसकी माया की परवाह नहीं की। सो इस करके हे जीव ऐं कर। इन्नियां गल्लां दस के अगले श्लोक च इशारा करते हैं, कबीर सुख ना ए जुगे करे जो बावते मीत। बहुतियां दोस्तां मित्रां रिश्तेदारां परिवार दे नाल सुख नहीं आना। तो फिर की कर? जो चित राखे एक स्यों, तू बहुते ना कर, एक दा ही मित्र बन जा बस। जो चित राखे एक स्यों ते सुख पावे नीत। उस एक दे नाल दोस्ती कीती हुई सदीवी सुख है, ते बहुतियां नाल कीती हुई दुख दा बीज है, सुख दा बीज नहीं है। पर उहदे नाल दोस्ती होएगी किस तरह? अगे जवाब दिंदे ने, कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद। इस गल बड़ी असा गलत समझिया। कबीर जी इत्थे शरीर दे मौत की गल नहीं कर रहे, क्योंकि अगे कह रहे ने मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। परमानंद ऐस शरीर विच बैठिया मिलता है, मरण तो बाद नहीं मिलता। जे ऐस शरीर च बैठिया नहीं मिलिया, उत्थे भी नहीं मिल सकता। मतलब कबीर जी नूं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होया, श्री गुरु नानक देव जी नूं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होया कि वो इंतजार करते रहे इत्थे धरती छड्डण लई।
नहीं, इत्थे किहड़ी मौत की गल हो रही है? हंकार की गल हो रही है। संसार दे विच बैठिया होया मैं मर जाए, ये बर्दाश्त नहीं होंदी। क्यों? सारी एग्जिस्टेंस ही पहचान नाल है। तो जे पहचान ही मर गई तो कबीर जी ने नारा लगाता, कबीरा तू, कबीर तू, तेरो नाम कबीर। ना मेरा कोई एड्रेस है, ना मेरा कोई ठिकाना है, ना मेरी कोई जात है, ना मेरी कोई पात है, ना मेरा कोई ना है। साडे जो किहड़ा कह सकदा जी? असीं ते अपने आप नूं दुनिया विच डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तदे तो असीं कहने जी सारे सिंह ही होए तो पहचान की होई फिर? होर कुछ नहीं, अपने पिंड का नाम ही लिख दिओ जे जात नहीं लिखनी तो। तखल्लस ही लिख दिओ, होर कुछ नहीं। तो मस्कीन एक तखल्लस है, ना वो जात है ना वो पिंड है। ना दे अगे प्रोफैसर ला लिया, यूनीक बन गया। भिंडरा वाला लगा लिया, पिंड का नाम बन गया। भाई अलग पहचान होनी चाहिए है। तो कबीर कह रहे कादी पहचान? पहचान तो उसकी होंगी है, अपनी पहचान कादी है? वो उस मौत की गल कर रहे हैं। कबीर जिस मरने दे जग डरे, कहते हंकार नूं मारन तो दुनिया घबराती है, और भगत उसकी स्वागत करता है, क्योंकि जदों हंकार मरिया उदों ही परमात्मा प्राप्त होता है। जिन्ना चਿਰ हंकार नहीं मरिया उन्ना चਿਰ परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। तो जे परमात्मा प्राप्त हो जाए तो एक जिम्मेवारी आ जाती है। वो जिम्मेवारी केड़ी है? अगले श्लोक 14 जवाब देंदे ने, कहंदे ने राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ ना खोल। कहंदे हुण इहदा सब थां ते खलारा नहीं। क्यों नहीं भाई? कहंदे उथे किथे नहीं पट्टन नहीं पारखू नहीं गाहक नहीं मोल। जिथे खरीदार नहीं, समझण वाला नहीं, लैण वाला नहीं, उथे इस गंढ नूं बंद ही रख ला। इसे करके गुरबाणी ने एक थां ते होर भी सानू ये इशारा किया है कि जेकर महंगी चीज़ है तो उहदे लई खरीदार भी उस तरह का महंगा चाहिए। इसे करके क्या सी, बिन गाहक बिन 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 गाहक गुण बेचिए, बिन गाहक गुण बेचिए ताओ गुण सहगो जाए। सहगो तो मतलब था सस्ता, बर्बाद हो गया। बिन गाहक गुण बेचिए ताओ गुण सहगो जाए, गुण का गाहक जो मिले ताओ गुण लाख बिकाए। इनू प्राप्त करने वाला होवे सही कोई, फेर तो दे। तो जिन्हें इनू ठुकराना है उथे मस्ती चंगी है। संत मिले कि सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त रह रही। वही गल कबीर जी ने इथे दोहराई कि जेकर तेनू वो मिले तां जिथे वंडिया जा सकता है
ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੰਡ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਾ ਕੋ ਠਾਕਰ ਰਾਮ। ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਜਿਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਜਾ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਰਾਮ। ਜਿਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹੜਾ? ਪੰਡਤ ਰਾਜੇ ਭੂਪਤੀ। ਪੰਡਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਗਿਆਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ। भूपत का मतलब है अमीर। भू का मतलब जमीन, पति मीनस जिद को बहुत दौलत है। कहते जे तू ये नाल दोस्तियां बनाने की कोशिश की जी किसी आम करते हैं तो कहते आमन कौन है काम, ये तेरे किस काम आने ने। हो सकता है इस धरती के तेरे थोड़े बहुते काम आ जाए, पर उसे की करेगा। इस करके ऐसी संगत ना बना। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਬੀਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਸਿਉਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਆਨ ਦੁਬਦਾ ਜਾਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ, ਡੁਐਲਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ बाहर नाल कोई संबंध नहीं होए, सारी गल अंदर दी हूँ। क्यों? भावें लांबे केस कर, भावें घरड़ मुड़ाए, भावें जटा रखियां होण ते भावें गंज कीता होवे, इस बाहर दे नाल परमात्मा दा कोई संबंध नहीं। हुण वेखो तुसीं, ये जिहड़ा श्लोक है ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੋ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਲੰਬੇ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਆ ਨੋਟਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਭੋਲਿਓ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਘਰੜ ਮੁੜਾਏ, ਉਹਦੇ ਮੇਕਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। परमात्मा की दुनिया नाल शरीर का कोई अंग जोड़ देना, कोई क्रिया कर्म जोड़ देनी मनमत है, गुरमत नहीं है। तो ये अपने आप को जस्टिफाई करना जी साढ़े बारी थोड़ी है। उन्होंने दिनों के योगी होंदे सी, उन्होंने दियां जटा बड़ियां होंदियां सी या बोधी होंदे सी, उन्होंने टिंडा कीतियां होंदियां सी। इस करके कबीर जी ने उन्होंने बारे क्या बिल्कुल मनमत की गल है। कबीर जी ने सारी दुनिया बारे क्या, मुसलमानों ने विचकार कर लिया। उन्हें कहा ना सारी दाढ़ी कटो, ना सारे बाल कटो, ना बिल्कुल गंजे करो, ना बिल्कुल वधाओ। तुहानूं पता मुसलमान दाढ़ी कितनी रखता है? वो अपनी इस मुट्ठी नाल ठोडी ते रख के ते ऐं मुट्ठी मेड़दा ते आ थले जिन्ने बाल बदे नहीं थोएं कट दिंदा। बस आ मुट्ठी जिन्ने बाल होने चाहिए, आ ओहदा मैजर जे। ओए की तमाशा बनाया तुसां? किसी ने कली चोटी रख ली सेंटर च, किसी ने पूरा गंज कर दिता, किसी ने जटा बना लिया, किसी ने अद्धा कर लिया, किसी ने पूरा ही कर लिया। वो कबीर जी कह रहे हैं काहदे च फस गए हो? ये तो डुअलिटी है, तो दुबदा है। चाहिए तेनू की है? कबीर प्रीत एक स्यों की है, बाकी सारा की है आन दुबदा।
बाकी डुअलिटी है। और डुअलिटी की इन्नी क निशानी दस दी, भावें लांबे केस कर भावें घर मुड़ाए। तो इन्हां आखिरी श्लोक जिहड़ा कि मैनू भेजा गया सी, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगण करे, काहे की कुसलात हाथ दीप कुएं परे। कबीर जी कह रहे हैं कि इंसान ने दीवा ते पकड़े, रोशनी ते पकड़ी हुई है हाथ में, पर अपने लिए नहीं, दूजिਆਂ ਨੂੰ रोशनी विखा रहा है। कहते कोई अकलमंदी है, अपने हाथ में दीवा है तो आप खूह च डिग रहे हैं, क्योंकि यकीन ही लैके चलिया भी दुनिया को दसना है जी आह धर्म का काम है, परमात्मा का काम है, दुनिया को देख के 4 पैसे कमाने हैं। और आपको पता है कि जो मैं कर रहा मैं तो आप खूह च डिग रहे हैं। कबीर मन जाने सब बात करते, सब पता है, दसन वाले भी पता है, सुनने वाले भी पता है। एक दूजे दे टॉर्च ला के एक दूजे के मूँह से मारते पे ने, टॉर्च नूं अपनी वल नहीं करते। आ फर्क पै गया। एनू ही टॉर्च हो गई, दुनिया के ही नुक्स नज़र आने लग पे, अपना नुक्स कोई नज़र नहीं आता। इस तो वड्डा भुलेखा पैना, इस तो वड्डी गलती होनी होर कोई नहीं। सो अज असां जिहड़े वो मिसिंग श्लोक सन सीरीज़ दे विचों वो कवर किए ने। अगे जो संगत का हुक्म होएगा उस मुताबिक ये लड़ी चलाते रहांगे। भुलां चुकां दी खिमा। हुण अगर किसी ने कोई सवाल करना है या विचार देना है तो दास हाज़िर है।